अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे तो थंबनेल से ये बात कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम और इस्लाम में LGBTQ इंटीग्रेट कर देना, दिस इज़ नॉट इस्लाम। लेकिन क्या ये बात इतनी ही हद तक हो सकती है? हो सकता है हम थंबनेल से वीडियो को जज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में ना हो। फॉर अट्रैक्शन लोग ऐसे थंबनेल्स लगा देते हैं, लेकिन क्या इस वीडियो के अंदर होगा, क्या वाकई में इस्लाम के अंदर ये लेस्बियन और गे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, या हकीकत कुछ और है? आज हम ये वीडियो देखेंगे और जानेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड एंड लेट्स वॉच दिस वीडियो। I was in my room studying when all of a sudden, out of nowhere, I heard the sound of two women behind me. When I looked back, I noticed my father standing there with my mobile phone in his shaky hands, staring at me. I could see how mad he was when he started walking angrily towards me. Run or he will get rid of you, I thought to myself. But let's back up a little first. As a Muslim girl from a Turkish family raised in Germany, I was educated very religiously and always believed in Allah. I prayed 5 times a day, fasted during Ramadan, and dressed like a child to not attract the boys' attention. It was always very exhausting, but I knew I had to do it to make both Allah and my parents happy. When I turned 14, my dad ordered me to start wearing a hijab. I always knew that day would come, but I never expected it to happen so fast. Not wearing it wasn't an option because in Islam, the woman is very submissive to the man and she needs to do everything that he asks of her. As a small child, I would Wait. Woman is not always submissive to men in Islam. बेसिकली अल्लाह ने जब मर्द और औरत को बनाया है तो उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करी हैं। बॉडी चेंजेस तो हैं, अपीयरेंस वाइज आप डिफरेंट हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका काम भी एक जैसे होगा, ज़िंदगी का मकसद और ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी एक जैसे होगा? नहीं, अपीयरेंस ही आपको बताती है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। तो इसको ये बात इंटीग्रेट कर देना इसमें, मर्दों के आप अंडर आती हो। देखिए, मर्दों को एक हाथ ऊपर दिया है क्योंकि मर्दों के अंदर ताकत है जो औरतों के अंदर नहीं पैदा हो सकती। कुछ औरतें एक्सेप्शन नहीं हो सकती। आगे देखते हैं। I would always see my mother when she didn't obey him. He even told her that he was holding back compared to his friend in Saudi Arabia, who would have done much worse things to his wife. So if I refused to wear the hijab, you can imagine what would happen to me. Throughout my life, I was repeatedly told that I was born to marry a wealthy Muslim, and as his wife, I would have to serve him and take good care of him. I always agreed with it, and honestly, I was looking forward to it. But during puberty, I realized that there was something wrong with me. When I looked at girls, I always imagined myself kissing their soft lips and getting close to them. I always thought it was a normal feeling because I was so lonely. My parents would not let me get close to any non-Muslim girls. So it felt logical to me as I only had a few friends. फ़र्स्टली यहाँ पे इस्लाम की गलती नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो इस लड़की के पेरेंट्स हैं, ये परवरिश गलत कर रहे हैं। ये फ़ोर्सफुली इस्लाम को इस तरह से दिखा रहे हैं कि बहुत ही कोई नुकसान देने वाली चीज़ है, बहुत ही जुल्म करने वाली चीज़ है। जुल्म और जबर करना इस्लाम में इज़ नॉट हलाल। तरबियत आप हुस्न अखलाक के साथ करें ताकि बच्चे को अच्छा लगे इस्लाम पर चलना, ना कि वो और मुनहरिफ हो जाए। तो यहाँ पे अव्वल व बेशतर तो गलती तो पेरेंट्स की है जो तरबियत कर रहे हैं। But as more time passed, the more uncertainties emerged. One day, I saw a girl on the internet who shared her story on coming out as a lesbian, and I realized I felt exactly the same way. This was when the most difficult phase of my life began. I knew that what I felt was wrong, and that Allah would burn me in purgatory for being this way. In Islamic states, they are even beheaded. And if it wasn't Allah who would punish me, my dad certainly would. But I was just so hungry for a lesbian relationship that I simply couldn't ignore it. Why am I this way? I'm not only a woman, I felt like I was punished twice. I knew I shouldn't be thinking something like that, but I did. Since then, it only got worse. I was losing more and more faith in Allah and was constantly afraid of my parents. My dad quickly realized that something was wrong with me and he began to spy on me. That meant I had to be even more careful. But I knew that in the long run, it couldn't go on like this.
One evening, my dad entered my room without me noticing. He was watching a video on my mobile phone where two women were kissing each other. He roared loudly of anger. He looked so mad, I knew I had to get out of there. So I ran out the door as quickly as I could. My dad threw me a shoe and started chasing me. In the background, I heard my mother crying loudly. I think she knew everything was going to change from that point. I ran away from my home without knowing where I was going. यहाँ पे पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने बच्चे की काउंसलिंग नहीं करी, इस दौरान बच्चे को अच्छे से फॉस्टर नहीं किया, उसको ये नहीं जानना चाहा कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। बस वो बच्ची जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से कि उसने जो दूसरों को करते हुए देखा वही सही समझ लिया। अगर उसको इस्लाम की तरबियत भी एजुकेशन दी जा रही तो वो प्रॉपरली नहीं दी जा रही, उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे दिन में ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं। लेकिन लेस्बियन होना, ये गे होना, इसकी कतई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। ये आप नया कॉइन, ये टर्म आप कॉइन कर रहे हो मार्केट में, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये हकीकत में है। 1400 साल पहले जो दीन हमारे पास आया था उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर कौमें लूत को सज़ा दी गई थी इसी जुर्म पे, ये क्राइम था। सेम हम जिन्स परस्ती करना, सेम जेंडर से हम बिस्तरी करना, ये गलत है। और अब तो LGBTQ+ आगे, यानी कि कितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं जो लोगों की डिज़ायर पे बेस करती हैं। तो आप किस किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे? अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं इस्लाम में लेस्बियन और गेज़ की इजाज़त दी जाती, जो कि बिल्कुल नहीं है, तो आज इस्लाम फिर ख़ुद गलत साबित हो रहा होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स आ चुकी हैं, लोगों की फीलिंग्स इतनी डिफ्रेंशिएट कर रही हैं, किसी एक चीज़ पे टिक नहीं रहा है। किसी को बिल्ली से दिलचस्पी है, किसी को कुत्ते से, किसी को अपने आप से, कोई अपने आप से शादी कर रहा है, तो इस्लाम तो फिर गलत साबित हो जाता। तो कहाँ कहाँ आप रोकेंगे? इस्लाम ने एज अ होल इंसान को गलत करने से रोक दिया। जहाँ एक बंदा करेगा वहाँ 4-5 लोग और करेंगे, 4-5 लोग और करेंगे, तो सोसाइटी ख़राब होगी। इस वजह से इस्लाम ने इस काम को रोका। तो यहाँ पे पहला तो उसकी तरबियत ठीक नहीं की गई, उसकी इस्लामिक एजुकेशन ठीक नहीं दी गई, उसको माहौल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो मुनहरिफ हो गई और घर से भागी। इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं। I had left everything behind me as I was running to save my life. After leaving my house, I kept running straight ahead and I never looked back. It was already dark and I needed to find a place where I would be safe. So I decided to go at a friend's house, which my parents didn't know because she was a non-Muslim. When I arrived, she was surprised and amazed to see me for the first time without my hijab on. I briefly told her the story. She understood and let me stay over for the night. The next day, I made my way to the youth welfare office and told them everything. They then organized an appointment for me in a residential group where I ended up staying. Now I'm finally fine, safe, and honest with myself. My parents were deprived of custody and any contacts with me are forbidden. I was told that my father still wants to get rid of me, permanently. But actually, that's his problem. I feel so good in this new life, in my new environment, and it's so nice to be myself. I know there are many girls in the world who are feeling the same way I used to feel. I want them to know that they should always be honest to themselves and not let their religion or anything limit them in life. You should all be free to be who you are. अगर आप हर चीज़ में आज़ाद कर दिए जाएंगे, आज़ाद ख़याली इंसान के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से इस्लाम ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं। अगर ये लिमिटेशंस नहीं होंगी तो आपका अपना नुकसान होगा। इस्लाम जो है वो माशरे की तरक्की के लिए सोचता है, इंसान की बेनिफिट्स के लिए सोचता है। तो अब ये सोचना कि अगर आपका दीन आपको लिमिट कर रहा है तो आप इससे आगे की सोचिए, तो ये सरासर गलत है। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम को डिफेम किया जा रहा है, इस्लाम को स्लैंडर करना है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत वीडियो है। यहाँ पे इस्लाम को बहुत गलत साबित कराया गया है, यहाँ पे माँ बाप को बहुत गलत दिखाया गया है। एक बात याद रखिएगा, इंसान की जितनी ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो मज़ीद और की तलाश में निकलता है। ये गेज़ और लेस्बियन, ये भी इसी ख्वाहिश का नतीजा है। इसलिए इस्लाम ने हमें लिमिट की है कि हम ख्वाहिशात को अपना हदफ ना बना लें, वरना हम दुनिया में भटक जाएंगे और हमारा असल मकसद जो आखिरत है उसको हम बुला बैठेंगे। मेरे पास न जाने कितनी एग्जांपल्स हैं जो जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी होती हैं वो सुसाइड उतनी ज़्यादा करते हैं। माँ बाप कम, वो तशद्दुद करने वाले लोग ज़्यादा लग रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम को फॉलो तो कर रहे हैं सिर्फ नाम के, लेकिन इस्लाम की प्रॉपर इम्प्लिकेशंस उनकी नहीं हैं। जो इस्लाम ने मोहब्बत और अपनाइयत देने का कहा है, औलाद को एक आजमाइश कहा है, तो उन्होंने इसको जबरन अपनी औलाद पे मुसल्लत किया है, तो ये कतई गलत है।
आपका क्या ख़्याल है इस वीडियो पे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा अपने ओपिनियंस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।